میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضب ڈال دیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی اپنی ملت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں اڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلال میں روغن گلستان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری ملت قوم کیوں شفا نہیں پا؟ تو میرے عزیزو، یہ یرمیہ نبی کا نالہ ہے، رونا ہے، ہے کہ میری جو قوم ہے، قوم بنی اسرائیل کی بات ہوئی، کیوں شفا نہیں پائی؟ تو میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں کہ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیا جلال میں روغن گلستان نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں شفا نہیں پا رہے، کیوں وہ رہائی نہیں پا رہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دل مجھ میں سست ہو گیا، دعا کر کر اس قوم کے لیے دعا کر کر کے وہ کہتا ہے کہ میرا دل مجھ میں سست ہو گیا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر کر کے اب رونا شروع ہو گیا ہے، اتنا زیادہ غمگین ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے، کہتے ہیں کہ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے؟ تو کیوں اپنے غم سے، اپنے بیماریوں سے، اپنے دکھوں سے شفا نہیں پا رہے؟ روغن گلستان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو روغن گلستان جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص قسم کا آئل تھا۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ اپنی باڈی پر اسے لگاتا تو وہ آرام پا جاتا۔ اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، وہ ساریاں دوائیاں بھی لانا کھاتے ہیں، دوائیاں کھا بھی کھاتے ہیں، شفا نہیں مل رہی، آرام نہیں مل رہا۔ کیا جلال میں روغن گلستان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میرے عزیزو، جلال جو ہے اس کے لفظی معنی ہے شہادت کے پتھروں کا ڈھیر۔ یہ ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ یرمیہ نبی جیسے کہ زبور 16 اور اس کی 4 آیت ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، 16 زبور، وہ کہتے ہیں کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ کیا آپ نے پڑھا کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا؟ میرے عزیزوں، قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے بیماری سے، اپنی پریشانی سے، اپنی کمیوں سے، اپنی کمزوریوں سے شفا کیوں نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ وہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تراشی ہوئی مورتیں، بت، ڈھالے ہوئے بت بنا کر ان کی پرستش اور ان کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بیماریوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور اب خداوند کے بندہ یرمیہ کہتے ہیں کہ
अब तो मैं भी सुस्त हो गया हूं, अब मैं सुस्त हो गया हूं, मेरा दिल सुस्त हो गया है। तो एक वक्त हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि इनके लिए दुआ करना बंद करो। इनके लिए क्या कर दे? दुआ करना बंद कर दे। यिर्मयाह के 7वें बाब की 16वीं आयत में हम इसको जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं, बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और उनके वास्ते आवाज बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर माबूदों के लिए तपमन तपाकर मुझे गजबनाक करें। खुदावंद फरमाता है, क्या वो मुझ ही को गजबनाक करते हैं? क्या वो अपनी ही रुसयाही के लिए नहीं करते? तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि उनके लिए अब कोई भी खुदावंद कहता है कि शिफायत करेगा मैं नहीं सुनूंगा। जिस तरह कोई भी काम हम करते हैं वो तजावज कर जाता है, कोई भी गुनाह करते हैं तो वो हद से बढ़ जाता है, तो खुदा फिर क्या करता है? अपना मुंह मोड़ देता है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा ही हुआ। और खुदा के बंदा यिर्मयाह कहते हैं कि देख मेरी बिनते कौम के नारा की आवाज दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सयोन में नहीं? क्या खुदावंद सयोन में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूरतों से और बेगाना माबूदों से मुझको गजबनाक किया? ये मेन वजह थी जिसकी वजह से खुदा जो है अब कौम बनी इस्राएल की कोई ना तो दुआ सुन रहा है, ना इल्तिजा सुन रहा है, ना उसको शिफा मिल रही है, ना वो अपनी बीमारियों को जो उनके अंदर थी उनसे शिफा पा रहे हैं। तो इसलिए खुदावंद की बंदा यहाँ कहते हैं कि क्या जलाद में रोकने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? सब कुछ है, तबीब भी है, रोकने बलसान भी है, जो कि बीमारियों से शिफा देता है। यहां हमने इस बात को देखना है कि उनकी जो रूहानी बीमारी थी उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है रूहानी शिफा, बात हो रही है रूहानी शिफा की। जिस्मानी तौर से वो पहले शिफा पा जाते थे, अब ना तो उनको जिस्मानी शिफा मिल रही है, ना ही वो रूहानी तौर से शिफा पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और उसकी वजह यही है कि उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया है, खुदा को छोड़ दिया है, खुदा की नहीं सुनते, गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं। और हमने क्या भी सीखा यहाँ कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं। तो कौम बनी इस्राएल ने ऐसे किया, गैर माबूदों के पीछे दौड़ते और उनके गमों में इजाफा होता चला जा रहा था। और खुदावंद के बंदा यिर्मयाह दुआ करता था और उसकी दुआ भी रुक जाती। मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं? आज अगर हम इस बात को देखें, अगर हम नए अहदनामा में आ जाए तो नए अहदनामा में हम देखते हैं कि जलाल जो है एक हमने क्या बोला कि पहाड़ के ऊपर, वहां
से ये रोकने बलसान जो है मिलती थी। और जब हम नए अहदनामा की बात करते हैं तो वहां हमें मिलता है कोहे कलवरी। हालेलुया हालेलुया। नए अहदनामा में क्या मिलता है? कोहे कलवरी। आपको पता है कि कोहे कलवरी पर क्या था? कोहे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हालेलुया हालेलुया। कोही कलवरी पर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी का लहू है। तो आज हमें इस बात पर गौर करना है कि अब कोई भी जो बीमारी है, अगर हम उससे शिफा नहीं पा रहे, कोई भी काम जो है वो होता नहीं है, तो अब हमें क्या करना है? हमें किस चीज की जरूरत है? हमें कोहे कलवरी की तरफ नजर करनी है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो रोकने बरसात था वो जिस्मानी बीमारी को दूर करता था, जिस्मानी बीमारियों से शिफा देता था। अब वो बीमारियां भी खत्म नहीं हो रही। तो अब हमने गौर कर रहे हैं इस नए दौर में जब हम आए, तो नए दौर में न्यू टेस्टामेंट में हमें खुदावंद यीशु मसीह का जो लहू है वो कोहे कलवरी से बहता हुआ नजर आता है। कोहे कलवरी भी एक पहाड़ी पर, तो जब यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया तो रोकने बलसान जो है वो क्या करता था? जिस्मानी शिफा का काम करता है। मगर जो कोहे कलवरी से यीशु मसीह का लहू बहा है वो किस बीमारी को दूर करता है? सारी बीमारी, वो रूहानी बीमारी को दूर करता है। वो हमारी जो रूह है उसको तब्दील कर देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस्मानी शिफा भी देता है और रूहानी शिफा भी देता है। रोकने बलसान सिर्फ कौन सी बीमारियां दूर करता था? जिस्मानी। मगर जब हम कोहे कलवरी से बहते हुए लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, तो जिस्मानी शिफा तो मिलती ही है, साथ में रूहानी शिफा भी हम पा जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के लहू की कुदरत को हम देखते हैं कि जब एक शख्स जिसने यीशु मसीह की पसली में बाला मारा तकलीफ और वहां से खून जारी हुआ, पानी जारी हुआ और वो उसके ऊपर आकर ठहर गया और उसी वक्त वो शख्स क्या हो गया? तब्दील हो गया। हालेलुया हालेलुया। उसी वक्त उसी घड़ी वो शख्स तब्दील हो गया और उसने यीशु मसीह को कबूल किया। आज हमें क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है, अपने ऊपर लेने की जरूरत है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेते हैं, अपने घरानों के तो गिर्द उसे लगाते हैं, तो हमारे घराने क्या हो जाते हैं? महफूज हो जाते हैं। खुदा ने मूसा से क्या कहा? तो क्या करना? बर्रा लेना और उसका खून क्या करना? अपनी चौखटों पर लगा देना। हालेलुया हालेलुया। बर्रा लेना और उसका लहू अपनी चौखटों पर लगा देना। तो उस वक्त क्या होगा? फिर जब मौत का फरिश्ता आएगा तो उस खून को देखता हुआ, हालेलुया हालेलुया। तो हमें मेरे अजीजों इस बात को अपने जहन में रखना है कि कौम बनी इस्राइल आज भी यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, यीशु मसीह पर आज भी ईमान नहीं लाए। और जो कुरान के कलाम लिखा है कि जो ईमान लाया उसने क्या किया? हालेलुया हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या कर दिया? अपने फर्जंद होने का हक दे दिया। बेशक खुदा ने कौम बनी इस्राइल को भी अपने फर्जंद कहा था,
अपना बेटा का, मगर वो अपने कामों की वजह से खुदा से दूर हो गए। मगर जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो उन्होंने करीब लाने के लिए अपने लहू को बहा दिया ताकि वो करीब आ जाए, ताकि वो उसकी कुर्बत में आ जाए। खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो उसके कुर्बत में, उसकी नजदीकी में आ जाए। मगर उन्होंने क्या किया? कलाम हमें बताता है कि उन्होंने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। पुराने एहदनामा में भी इन्होंने रद्द किया, और जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो यहाँ भी उन्होंने रद्द ही किया। तो आज हम जो मसीही हैं, हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि जो खुदावंद को, उसके कलाम को रद्द करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। हम इस बात को देखते हैं, कौम बनी इस्राएल ने खुदावंद को रद्द किया, उसके कलाम को रद्द किया, और सन 70 में हैकल को क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। हैकल को बर्बाद कर दिया गया और कौम बनी इस्राएल पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए, भाग गए, और जहां कहीं गए वहीं जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और आज इस दौर में जब हम अपनी मसीही जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कौम बनी इस्राएल को, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं कौम बनी इस्राएल की सिवा और किसी के लिए भेजा नहीं गया। मगर जब कौम बनी इस्राएल ने खुदा को, उसके कलाम को रद्द कर दिया तो खुदा ने क्या किया? गैर कौमों की तरफ, और गैर कौमों ने क्या किया? यीशु मसीह को कबूल किया। और कलाम में क्या लिखा है? जितना कलाम में ये लिखा है कि जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौम बनी इस्राएल कहते हैं अव्वल। और जब उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया, खुदावंद को रद्द कर दिया, गैर माबूदों की इबादत करना शुरू कर दी, तो वो क्या हो गए? आखिर हो गए। और फिर वो कौम जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, चाहे वो कोई भी यहूदी, लतीनी, जो भी थे, कलाम हमें बताता है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दे दिया, और खुदा ने उनको कबूल किया। और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? यहूदी कितने हैं पूरी दुनिया में? तकरीबन 1.5 करोड़। और मसीही कितने हैं पूरी दुनिया में? 1.5 अरब से ज्यादा। हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि खुदावंद खुदा अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है। आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसा है। जो खुदावंद को कबूल नहीं करते, खुदावंद की राहों से हट जाते हैं, ये आयत उनके लिए कि मेरी बेनते कौन तू शिफा। जो खुदावंद की राहों से दूर हो जाते हैं, खुदावंद की राह ये है और हम ये वाली चूज कर लेते हैं या ये वाली चूज कर लेते हैं, सीधी राह को छोड़ देते हैं, उनके काम जो है उनके वसीला से खुदा उनसे अलग हो जाता है। इस तरह कौम बनी इस्राएल से अलग। खुदा चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो उसकी फरमाबरदारी में चले। खुदा
चाहता है कि हम जिस्मानी और रूहानी दोनों तरक्की करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है कि हम जिस्मानी भी और रूहानी दोनों तरफ से तरक्की करें। आसमानी और जमीनी खुदा हमें बरकतें देना चाहता है, और अगर हम उसको रद्द कर देते हैं, उसके कलाम को रद्द कर देते हैं, तो खुदा अपनी बरकतों को रोक लेता है। खुदा अपनी बरकतों को रोक लेता है और फिर हम बरकत पाते नहीं हैं। पैसा जरूर होता है हमारे पास, मगर वो पैसा हमारे ठीक जगह पर काम नहीं आता। तो इसीलिए खुदावंद के बंदा यिर्मयाह कहते कि काश मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। तो मुझे तसल्ली नहीं मिल रही, मेरी बेनते कौम शिफा नहीं पा रही। आज भी अगर हम नए दौर में इस बात को समझें, तो हमारी जो मसीही कौम है उसका भी हाल यही है, उसका हाल भी यही है। हर उस क्लोसेट में जाते मगर शिफा नहीं पा रहे। नवे नवे पादरी लाते नहीं, शिफा नहीं मिली। हर एक पास्टर के पास, पादरी के पास, जिदा नाम कोई बड़ा है, उनके को इलाज नहीं जाना। ये बहुत बड़ा खादिम है, ये बहुत बड़ा खादिम है, इसके पास बड़ी ब्लेसिंग है, मगर शिफा किसके पास है? खुदा के पास। हालेलुया। हालेलुया। शिफा कहाँ से आती है? खुदा से, खुदा की तरफ से है। अगर हम खुदा के वफादार नहीं है, खुदा की वफादारी में नहीं चलते, खुदा की हजूरी में नहीं बैठते, खुदा के कदमों में नहीं झुकते, तो शिफा नहीं पाते, ना जिस्मानी और ना रूहानी। दोनों तौर से हम नाकाम रहेंगे, जिस्मानी तौर से भी और रूहानी तौर से भी। तो इसीलिए खुदा के बंदा यिर्मयाह कहते हैं कि मेरी बेनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। आज के दौर में भी ऐसे मसीही कौम जो है, अगर हम उसकी जिंदगी पर गौर करें तो मसीही कौम भी ऐसे ही है। हर एक जगह पर आप जहां हम जाते हैं, अगर आप देखें कोई भी लालच देकर, देखा कि भाई वहां बहुत बड़ी इबादत है, वहां फला चीजें आपको मिलेंगी, इतना रश होगा, इतना ज्यादा क्राउड आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे। तो हमने इस बात को समझना है कि वो लोग वहां क्या करने गए? दुआ के लिए तो नहीं गए, वो लोग वहां उस चीज को लेने गए जिसका उनके अंदर लालच है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी हम देखते हैं, वो मज़ारों पर जाकर देव को चढ़ाते हैं। इसमें ऐसे लोगों को देखा है, उसी भी लोगों को मज़ारों पर जाकर देव को चढ़ाते हैं। शिफा का नहीं, मेरी बिलते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? फकीरों के पास जाकर पैसा बर्बाद करते हैं, इधर उधर पैसा बर्बाद करते हैं, खुदा के लिए नहीं। तो मेरे अजीजों, कौम बनी इस्राइल का भी यही हाल था, और आज की अगर मसीही कौम पर हम गौर करें तो वो भी उनसे कुछ कम नहीं है। तो इसीलिए मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि मसीही कौम गुर्बत से नीचे जिंदगी बसती है, क्योंकि खुदा की तरफ रुझान नहीं है, खुदा की तरफ उनका रुझान नहीं है, और दूसरे कामों के लिए वो हर काम में पेश नजर आएंगे। आप
دعا کے علاوہ کوئی بھی کام آپ کوئی بھی محفل سجا لے آپ کو بہت کراؤڈ ملے گا. جہاں خدا کا نام آئے گا لوگ پریشان ہو جائیں گے. دعا بھی ہونی دعا بھی کرنی تو دعا جو ہے اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. تو اس لیے خداوند کے بندہ یرمیاہ کہتے ہیں کہ میں جو پریشان ہوں, میرا دل سست ہو گیا اپنے اندر, دعا کر کر کے میں اپنی قوم کے لیے تھک چکا ہوں. اب تو خدا نے بھی مجھ سے کہہ دیا کہ ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے, ان کے لیے دعا کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ اپنی کاموں سے باز نہیں آتے. یہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنا نہیں چھوڑتے, اس لیے تو ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے, کیونکہ یہ باز نہیں آتے, اس لیے میں تیری دعا نہیں سنوں گا. تیرا جھکنا میرے حضور فضول ہے. تو دعا تو کرے گا, میں سنوں گا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کرتے, اس لیے آپ سے تو دعا کرے گا اور میں تیری دعا کو نہیں سنوں گا. تو میرے عزیز لوگ, ہمیں بے شک اس دنیا میں ہر چیز ملتی ہے, خدا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, ہر چیز ملتی ہے. اگر ہمارے پاس زندگی نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی, تو پھر ہم صرف اور صرف ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ختم ہو جائیں. مگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندگی پاؤ اور زندگی دینے کے لیے خدا یسوع اس زمین پر آئے. زندگی خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. نہ روپیہ, پیسہ, عزت, دولت, کسی چیز سے ہم زندگی نہیں خرید سکتے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ایک ہی بات کہی, راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اور جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے. آمین, آمین, ہاللویا, ہاللویا. میرے عزیزو, اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے.